اکثر گفتگو سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں یا وفاقی دارالحکومت میں کوئی ایک ایسا درخت ہے جس پر پیسے اگتے ہیں اور اسلام آباد اسے توڑ کر خیرات کے طور پہ صوبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس گرین کتاب میں درج ہے، جس کے بہت سارے آرٹیکل 160 سے لے کر 171 تک یہ طے کرتے ہیں کہ کس انداز میں ریاست کے مالی وسائل مختلف سطح حکومت میں بانٹے جائیں گے۔ دستور میں کچھ ٹیکس طے کر دیے گئے کہ یہ وفاقی حکومت اکٹھے کرے گی اور پھر نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت اس کی تقسیم کا ایک ایوارڈ بنایا جائے گا۔ یہ سب ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں تمام صوبوں سے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور آئین اس کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ کون سی سطح کلیکٹ کرے گی اور کیسے تقسیم ہوگا۔ لیکن جب 1935 کا ایکٹ بر صغیر میں آیا، جس میں پہلی بار صوبائی حکومتوں کا ایک مؤثر تصور آیا، تو اسی وقت ایک ایوارڈ سر اوٹو نیمر کی قیادت میں بنایا گیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ کون کون سے ٹیکسز صوبے اکٹھے کر پائیں گے اور کون کون سے ٹیکسز ایسے ہیں جس میں سے صوبوں کو اپنا کاروبار حیات چلانے کے لیے وسائل ملیں گے۔ اور جب قیام پاکستان ہوا تو اس وقت ہم اسی نیمر ایوارڈ کے تابع تھے۔ تو اس وقت کے فائنانس سیکریٹری سر جرمی ریزمن کی قیادت میں ایک ایوارڈ بنا، جسے ہم ریزمن ایوارڈ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے صوبوں اور وفاق کے مابین وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے ہوا۔ جب 1971 کا سانحہ ہوا تو اس وقت ایک بہت بڑا مدعا یا سوال یہ تھا کہ شاید ہم پاکستان کو چلاتے وقت صوبوں اور وفاق کے مابین وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کر پائے، اور اس کی بہت بڑی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑی۔ اگر آپ اس دور کی قومی اسمبلی کی کارروائی پڑھیں تو آپ کو ہر تیسرا سوال ملے گا کہ ادھر آپ نے 10 روپے خرچ کر دیے، ادھر آپ 2 روپے خرچ کرنے سے گریزاں ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم 1973 میں پہنچے، ہم نے دستور بنایا، اور اس دستور میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا ذکر ہے کہ ہر 5 سال بعد اس کی تشکیل ہوگی نیشنل فائنانس کمیشن کی، اور وہ اتفاق رائے کے ساتھ اپنا ایوارڈ دے گا۔ اور اس حوالے سے پہلا ایوارڈ 1975 میں آیا۔ اس ایوارڈ میں اگر قوم کے پاس 1 روپیہ تھا تو اس میں سے 20 پیسے وفاق کو ملتے تھے، 80 پیسے صوبوں کو ملتے تھے۔ یہ شرح تھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ڈسٹریبیوشن، اور دوسری اس میں تقسیم ہوتی ہے جسے ہم ہاریزانٹل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، کہ صوبوں کے مابین وسائل کیسے تقسیم ہوں گے۔ اس تقسیم کے لیے جو فارمولا بنایا گیا، اس کی بنیاد آبادی کو بنایا گیا۔ ورٹیکل طے ہو گیا کہ 20 پیسے اسلام آباد رکھے گا، 80 پیسے صوبوں میں جائیں گے۔ ان 80 پیسوں میں سے جو فردر ڈسٹریبیوشن ہے وہ پنجاب کو 60.25 ملے گا، سندھ کو 22.50 ملے گا، خیبر پختونخوا کو 13.39 ملے گا، اور بلوچستان کو 3.86 ملے گا۔ پھر اس کے بعد مارشل لاء کا زمانہ آ گیا 1977 میں۔ 79 میں دوبارہ جب ایوارڈ بنا تو وہ بس صرف گفتگو ہی کرتا رہ گیا۔ اس کے بعد 1983 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی صوبوں کے حصے میں اونچ نیچ کر کے اسی پرانے ایوارڈ کے تسلسل میں ہم نے کام چلایا۔ پھر 1985 میں جب اچھی بری جمہوریت بحال ہوئی غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں، تو ہم نے ایک بار پھر نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کی، لیکن اس کی 13 میٹنگز ہوئیں اور اس کے باوجود وہ ایوارڈ تک نہیں پہنچ پایا۔ پھر یہ مرحلہ
1991 में आया। 1991 के अवार्ड में जो वर्टिकल हिस्सा है वो वही 2080 का रहा। सूबों के हिस्से में क्योंकि आबादी के तनासुब में कई जगह पे तब्दीलियाँ आई, फैक्टर फिर वही सिर्फ फ़कत आबादी था। पंजाब का हिस्सा 57.88 हुआ, सिंध का हिस्सा थोड़ा बढ़ गया 23.28 हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल मार्जिनली बढ़ा 13.54 हुआ, और बलूचिस्तान के हिस्से में एक सब्सटेंटिव इंक्रीज आया 5.80। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मलिक मिराज खालिद साहब की निगरान हुकूमत का दौर था, और बतौर निगरान वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना उनके पास थी, और उन्होंने एक मुशीर इम्पोर्ट किए जिनका नाम है डॉक्टर, बहुत मोतबर नाम है, डॉक्टर शाहिद जावेद बर्की। उन्हें मुशीर ख़ज़ाना बनाया, तो उन्होंने बैठ के एक अवार्ड तय किया। उसमें बहुत सारी बातें हुई, यही दिफा के हवाले से हुई, अखराजात बढ़ गए हैं, यही बातें हुई कि मुल्क पे कर्जे चढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, इसको कैसे तय किया जाए। तो इसमें जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, पहली बार ये की गई कि इस्लामाबाद 1 रुपए में से 62.50 पैसे रखेगा, कहाँ 20 पैसे और कहाँ एक निगरान हुकूमत के दौर में एक इम्पोर्टेड इकोनॉमिक एडवाइज़र और सूबों में भी निगरान हुकूमतें, और हमने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद का हिस्सा 20% से बढ़ा के 62.50% कर दिया, और सूबों का 80% से कम करके 37.50। मुशर्रफ साहब के ज़माने में अगरचे इकनॉमिक विजडम था शौकत अजीज़ साहब का, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो हम 7th अवार्ड पे पहुंच गए, जिसमें एक बार सब सूबों ने बैठ के बहुत बड़े बड़े फैसले किए। एक फैसला तो वर्टिकल शेयर का था। वर्टिकल शेयर सूबों के हक में टिल्ट हुआ, तय हुआ कि 42.50% वफाक के पास होगा और 57.50% सूबों के पास जाएगा। ये जो सूबों के साथ एक तारीखी ज़्यादती एक निगरान हुकूमत के दौर में हुई थी, उसको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई, और इस अवार्ड में पहली बार हुआ कि आबादी वसाइल की तकसीम का हॉरिजॉन्टल टर्म में सूबों के दरमियान वाहिद पैमाना नहीं होगा, एक बहुत बड़ा पैमाना वो फिर भी रहा। कहने का मतलब ये है कि 82% अभी तक आबादी की बुनियाद पे दिया गया, लेकिन 10.30% एक नया फैक्टर, इंडिकेटर कि किस इलाके में कितनी पसमानदगी है। और फिर बलूचिस्तान जिसे अपनी कम आबादी का शिकवा था, उस हवाले से एक इंडिकेटर आया जिसे इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, 5% हिस्सा उसको दिया गया। और बहुत सूबे बूस्ट करते हैं कि जी हम इतने टैक्सेस रेज करते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं, तो 2.70% इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का प्रीमियम दिया गया। जब ये अवार्ड हो गया तो आप देखें कि जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी फ़र्क आया, और वो फ़र्क कुछ इस अंदाज से आया कि पंजाब का हिस्सा 51.74% हुआ, सिंध का 24.55% हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का 14.62% हुआ, और बलूचिस्तान को एक अच्छा खासा जंप 09% इस हिस्सा दिया गया। पहले इस्लामाबाद जीएसटी ऑन सर्विसेज कलेक्ट करके स्ट्रेट ट्रांसफ़र करता था सूबों, और कलेक्शन चार्जेस लेता था 5%। सूबों ने कहा नहीं, हम तो अपनी अथॉरिटीज़ बनाएंगे, तो
आपको सुन के हैरानी होगी, FDR ने कहा सॉरी हम कलेक्शन चार्जेस 5% से कम करके 1% पे ले आए, यानी कि सूबों को 4% का प्रीमियम वहीं मिल गया। आप उसके ग्राफ्स उठा के देख लें कि अगर सन 2010 में FDR सूबों के GST के नाम पे 10 अरब रुपए इकट्ठे करता था, तो आज सूबे खुद एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर के साथ 110 अरब इकट्ठे कर रहे हैं। हम 2010 में आते हैं, पाकिस्तान की दस्तूरी तारीख में एक इनकलाब बर्पा होता है जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं। अब वो आइन का हिस्सा है, मैं उसे डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहता हूँ, जिसमें 17 वजारतें सूबों को डिवॉल्व हुई, 47 सब्जेक्ट्स थे जो रेजिडुअल हो गए, यानी कि सूबों का मैंडेट हो गए। 18वीं तरमीम की कमेटी में गुफ्तगू हुई कि अगर वफाक का हिस्सा कम कर दिया गया है 7वें NFC में, तो ये कर्जे कौन अदा करेगा। एक नई एंट्री जब ये गुफ्तगू हुई तो वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में रखी गई और उसे कहते हैं सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। ये नई एंट्री 8 आई कि ये जॉइंट फैमिली में बैठ के तय होना चाहिए कि कर्जे की मैनेजमेंट कैसे की जाए और क्या कोई सतह एक दूसरे से बढ़ के रेस में बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं ले रही। तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर भी अमल उस वक्त होना शुरू हुआ जब IMF आ गया। IMF के साथ जब मुआहदा हुआ तो एक नया डॉक्यूमेंट डेवलप हुआ कि जी हमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, सूबों को वो इख्तियार तो दिया है, जिम्मेदारी भी देनी है। उसके अंदर हर सूबे की कहा गया, फरमाइश की गई, पैसे तो आपको मिलेंगे लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते, इंड्यूस सरप्लस जनरेट करेंगे। 8वां अवार्ड नहीं हो सका, 9वां अवार्ड नहीं हो सका, क्योंकि गुफ्तगुएं यही थी कि जनाब केक से पहले ही काट के आप अर्स्टवाइल फाटा, साबका फाटा जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया, तो उसके लिए कुछ हिस्सा दें, CPEC की सिक्योरिटी के लिए कुछ हिस्सा दें, वॉर ऑन टेरर में बहुत खर्च हुआ है उसके लिए कुछ हिस्सा दें। मुतालबा इस्लामाबाद का ये है कि ये 7% किया जाए, 93% के बाकी बांटा जाए वफाक और सूबों के माबैन। अब लॉजिक का तकाजा ये है कि साहब का फाटा तो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ, तो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का बढ़ना चाहिए या इस्लामाबाद का। वजारतें 17 सूबों में गई हैं, हिस्सा इस्लामाबाद का बढ़ना चाहिए या सूबों का। जिम्मेदारियां 47 आइटम जो थे कंकरेंट लिस्ट के, वो इस्लामाबाद की जिम्मेदारी से उतरकर सूबों की जिम्मेदारी बने, तो हिस्सा किसका ज़्यादा बढ़ना चाहिए। क्राइसिस ये है, बिलाशुबा कर्ज़ों का बोझ है, बिलाशुबा मईशत उस अंदाज में फैल नहीं रही, हम टैक्स बढ़ाने में नाकाम हुए। क्या हल हो सकता? एक तो डंडे के जोर पर अब्बा जी बच्चों से छीन नहीं सकते, जो कुछ सूबों को दिया गया है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, आइन में प्रोटेक्शन है कि उनका हिस्सा कम नहीं हो सकता। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि इस्लामाबाद गरीब हो जाए, क्योंकि अगर बाप की जेब में पैसे नहीं होंगे तो बच्चों की खुशहाली बेमानी है, और बच्चों की जेब में पैसे नहीं होंगे तो घर का माहौल वैसा नहीं रहेगा। और फाइनल बात, नेशनल फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद बनाना दस्तूरी जिम्मेदारी है। तारीख गवाह है कि अब हम 10वें अवार्ड में, लेकिन प्रैक्टिकली 4 अवार्ड हुए, 1975, 1991 और तीसरा अगर आप 1996 का अवार्ड उसे अवार्ड मानते हैं था भरकर, और 2009 का अवार्ड। 7th NFC का कॉन्सेप्ट जॉइंट फैमिली की मेटाफर का है। इसको डंडे के जोर पे नहीं, बाहम मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को निभाया जा सकता है।